Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with your lesson number 3 of your class 5 in EVS, that is human body. So let's begin with this lesson. Now in this chapter we are going to study about skeleton system, secondly is the human body, and third is the muscular system. You know, in our body there are many organs, वो जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो मैनी ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं वो. लाइक हेयर द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है? 206 बोन्स होती है. हेयर मैच द बॉडी पार्ट्स ऑफ देयर बोन्स, मैच द बॉडी पार्ट्स टू देयर बोन्स. हमें मैच करने बॉडी पार्ट्स किनको? उनकी बोन्स के साथ. Here this is the we will match this with this, face this and this with this and this with. Now let's talk about skeletal system. Skeletal system क्या होता है? It is a structure made up of bones. जो क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसपे हमारे मसल्स रन करते हैं. लाइक the skeletal system is a framework of 206 bones in our body. क्या एक फ्रेमवर्क है 206 bones का हमारी बॉडी के अंदर. फ्रेमवर्क इन our body is called the skeleton. जो फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का उसको क्या कहते हैं? skeleton कहते हैं. It is the bones that give shape and support to our body. or skeleton can roughly be divided in four parts. हमारे skeleton को 4 parts में डिवाइड कर सकते हैं रफली. Let us study about them. क्या क्या होता है वो? The main part of skeleton system are skull, backbone, spine, ribcage and limbs. मेन पार्ट्स होते हैं. स्कल होता है जो आपके ब्रेन मतलब फेस का होता है. बैकबोन जो आपके बैक में होती है. स्पाइन भी वही होती है. ribcage and limbs. So now let's talk about skull first. This is the diagram of the skull. The skull is the back structure of bone. The skull is the bone structure of bones or framework of the head. किसका framework होता है? आपके head का होता है. It encloses and protects the vital part of our body and our brain. हमारी body के vital parts को protect करता है और हमारी brain के vital parts को protect करता है. Our skull has 22 bones. हमारे skull में कितनी bones होती है? 22 bones होती है. The part of skeleton inside the face is made up of 14 bones. जो part होता है skeleton का हमारे face के अंदर किससे बना होता है? वो 14 बोन से बना हुआ होता है. The only movable bones in the skull is the lower jaw bone. हमारी lower jaw bone ही खाली movable bone होती है हमारे पूरे skull में, और कोई bone move नहीं कर सकती. It enables us to eat, sing and talk. ये help करती है हमें eating में, sing करने में और बातें करने में. Now the muscle of our eyelid is the most active muscle of our body. जो muscle होती है हमारी eyelid की वो सबसे ज़्यादा active muscle होती है हमारी body में. It moves more than 1 lakh times in a day. एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार मूव करती है. Backbone और spine. The backbone और spine is the most important skeleton organ of our body. जो backbone और spine होती है आपकी body का most important organ होता है. So it extends from base of the skull down to the hips. कहाँ से extend करती है? आपके skull के base से और कहाँ तक? आपके hips तक. So it is not a single bone. ये single bone नहीं होती, but a group of drum shaped bones called vertebrae. क्या होती है? drum shaped bones होती है, उसको क्या कहते हैं? vertebrae कहते हैं. There are 33 vertebrae altogether. कितनी होती है? 33 vertebrae एक साथ. All the vertebrae are interconnected. सारी vertebrae आपकी interconnected होती है. They form the main axis of our body. हमारी body को main axis बनाते हैं. It helps the body to stand erect. It is flexible and protect the spinal cord, nerves and important blood vessels that run down from the brain. वो हमारी बॉडी को सीधा खड़ा करने में, इरेक्ट खड़ा करने में हेल्प करती है. और इसमें क्या होती है? बहुत सारी नर्व्स भी मूव करती है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी मूव करते हैं जो मूव करके हमारी बॉडी कहाँ तक मूव करते हैं? हमारी ब्रेन से हमारी लोअर बॉडी तक मूव करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में मूव करते हैं. सो इससे आपकी क्या होता है? आपके सेंसेस हो जाते हैं इन नर्व्स के थ्रू, जो आपके सिग्नल्स जाते हैं इन नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिब्स. The ribs are the thin and flat bones that are found around the chest. क्या होते हैं? thin और flat bones होती है. कहाँ मिलती है? आपके chest के अराउंड में मिलती है ये.
चेस्ट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। हमारी जो चेस्ट होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स से बनी होती है। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज। ये क्या फॉर्म करती है? प्रोटेक्टिव केज फॉर्म करती है। कहाँ पे? हमारे लंग्स और हार्ट के पास, अराउंड द हार्ट एंड लंग्स, कॉल्ड द रिब केज। उसको क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं, जो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट टू पेयर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, बिकॉज दे आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन। वो किससे ज्वाइंट होती है? हमारी बैकबोन से ज्वाइंट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिम्स, हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स। नाउ आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज लिम्स। जो आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? ये लिम्स होते हैं। बोन ऑफ द आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर एंड द बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच टू द हिप्स। जो बोन होती है हमारे आर्म्स की किससे अटैच होती है? हमारे शोल्डर से, और लेग्स की हमारे हिप्स से अटैच्ड होती है। ईच लिम्स हैज 30 बोन्स। जो ईच लिम्स होते हैं कितने बोन्स होते हैं? उसमें 30 बोन्स होते हैं ईच लिम्ब में। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ बोन्स therefore the total number of bones in the limbs is 120. total number of bones कितनी आपके limbs से? 120 हो गई। so the longest bone in our body is femur, thigh bone, which is the in the leg। जो आपकी femur होती है, आपकी thigh bone होती है, वो आपकी leg में होती है, वो सबसे ज़्यादा longest bone है आपकी body की। there are 3 small bones in the ear, of which the smallest is stapes। आपके ear में कितनी bones है? 3 small bones है, और उसमें क्या है? सबसे छोटी कौन सी है? स्टेप्स है। The hind limbs are very strong as they have to support the weight of our body। हिंड लिम्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उनको क्या करना होता है? सपोर्ट करना होता है वेट आपकी बॉडी का। The thigh bone called the femur। जो थाई बोन होती है आपकी, फेमर जो थाई लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की, is the longest bone in our body। Below the knee are 2 bones called the tibia and the fibula। नी से नीचे 2 बोन्स होती हैं, दैट इज टिबिया एंड द आपकी फिबुला, टिबिया एंड द फिबुला। द हिंड लिम्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन थ्रू द हिप ग्रिडल। हिंड लिम्स किससे अटैच्ड होते हैं? आपके स्पाइन से अटैच्ड होता है, किसके थ्रू? हिप ग्रिडल के थ्रू। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। Let's before that learn the smallest bone present in our body is stapes located in the middle ear। आपकी smallest bone होती है आपकी पूरी बॉडी की, stapes होती है जो कहाँ लोकेटेड होती है? आपके मिडल ईयर में लोकेटेड होती है। The bones of our skeleton provide shape, strength and support to our body। जो बोन्स होती है हमारी बॉडी की क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। द स्कल कवर्स द डेलिकेट ब्रेन। जो स्कल होता है क्या कवर करता है? डेलिकेट ब्रेन को कवर करता है। द आई बॉल रेस्ट इनसाइड द बोनी आई सॉकेट। जो आई बोन कहाँ रेस्ट करते हैं? हमारी बोनी आई सॉकेट के अंदर रेस्ट करते हैं। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। जो बैकबोन होती है क्या प्रोटेक्ट करती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, और रिब केज क्या प्रोटेक्ट करते हैं? आपके लंग्स को एंड हार्ट। द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप ग्रिडल। जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं कहाँ लाई करते हैं? आपके हिप ग्रिडल्स के अंदर। मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल। मसल्स क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं आपके बोन से और मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द बोन। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है? बोन प्रोड्यूस करती है, बोन मैरो। कहाँ पे? इन द हॉलो बोन्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट विद द एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म। किससे फाइट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स? आपके एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं, दैट में इन्वेड आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को इन्वेड कर देते हैं। द प्लेस वेयर 2 bones meet inside our body is called a joint। एक प्लेस जहाँ पे 2 बोन मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। जॉइंट्स की वजह से ही मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर पॉसिबल होती है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। जो बोन्स होती है कहाँ पे हेल्ड है? जॉइंट से हेल्ड होती है एक साथ। किससे? एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू होता है, उसको क्या कहते हैं? हम लिगामेंट कहते हैं। There is a cartilage present between the joints to prevent the bones from rubbing against each other। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आपके कहाँ पे? जॉइंट्स के बीच में, बोन्स के बीच में, जिससे वो रब ना कर पाए एक दूसरे को। वो प्रिवेंट करता है बोन्स को रब करने से एक दूसरे से। मोस्ट जॉइंट्स अलाउस अस टू ट्विस्ट, टर्न, बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। बहुत सारी जॉइंट्स अलाउ करते हैं ट्विस्ट करने में, टर्न करने में, मूव करने में, हमारी डिफरेंट पार्ट्स को हमारी बॉडी के। बट सच जॉइंट, तो उन जॉइंट्स को क्या कहते हैं? मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। हाउएवर द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट इन लोअर जॉ। जो जॉइंट्स होते हैं हमारे स्कल में वो इमूवेबल होता है, खाली हमारे लोअर जॉ को छोड़ के
सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, लाइक द हिंज जॉइंट, और एल्बो, नीज, फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज जॉइंट। हमारी एल्बोज में, नीज में, फिंगर्स में और टोज में क्या होता है, हिंज जॉइंट्स होते हैं। हिंज जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट ओनली इन द वन डायरेक्शन। ये क्या अलाउ करता है, मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। आप बैकवर्ड तो नहीं कर सकते अपने फिंगर्स को मूव, खाली फॉरवर्ड ही तो कर सकते हो। वी कैन बेंड आवर आर्म्स एंड लेग्स इन वन डायरेक्शन। हम बेंड कर सकते हैं अपने आर्म्स को और लेग्स को एक डायरेक्शन में। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन शोल्डर एंड हिप्स। कहाँ मिलती है ये, शोल्डर और हिप्स पे मिलती है। इन सच अ जॉइंट वन ऑफ द बोन्स हैज अ राउंड हेड। क्या होता है इन बोन्स पे, राउंड हेड होता है, which is the ball. The other bone has a cup-like area known as the socket. जो अदर बोन होता है उसमें क्या होता है, cup-like area होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। The round head fits into the socket or cavity of the other bone. जो राउंड हेड होता है कहाँ फिट हो जाता है, आपकी सॉकेट में या कैविटी में दूसरी बोन की। That and ball and socket joints allow movement in all direction. और बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या करता है, अलाउ कर देता है मूवमेंट को आपकी सारी 4 डायरेक्शंस में। Now let's talk about the pivot joint. The pivot joint is found between the skull and the first 2 vertebrae of the spine. जो first 2 vertebrae होती है आपकी स्पाइन में, वहाँ मिलती है और स्कल में मिलती है pivot joint. The pivot joint allows us to turn our head sideways, forwards and upward. हमारी head को turn around करने में sideways, forward and upward allow करती है। So and now gliding joints. Gliding joints are found in wrist, ankles and between the vertebrae of the spine. They allow gliding movements between flat bones. जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं हमारे कहाँ मिलते हैं, रिस्ट में मिलते हैं, एंकल्स में मिलते हैं और वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन, बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन में मिलते हैं। ये क्या अलाउ करता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स को मूव करने में बिटवीन द फ्लैट बोन्स। नाउ ह्यूमन बॉडी, क्या क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग, किडनी एंड द ब्रेन। Likewise, our body has several organ system. हमारी बॉडी में क्या है, several organ system भी हैं। Each organ system performs some specific functions and contribute it in the proper functioning of the body. हर organ system एक specific function perform करता है और contribute करता है हमारी body की proper functioning में। Every organ of the human body has a different function. हर organ में हमारी human body के क्या होता है, एक different function होता है। The stomach helps to digest the food. जो stomach होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ब्रेन का हेल्प करता है हमें सोचने में हेल्प करता है। These organs are made up of cells. जो ऑर्गन्स होते हैं किससे बने हुए होते हैं, सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ आवर बॉडी। और सेल्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। द सेल्स ऑफ ईच ऑर्गन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। जो एक ऑर्गन के सेल होते हैं वो दूसरे ऑर्गन से डिफरेंट ही होते हैं। This is the bone cell, this is the muscle cell, this is the nerve cell and this is the stomach wall cells. Now various organs and organ systems of our body are interdependent. बहुत सारे organs और organ system क्या हमारी body के एक दूसरे पे depend करते हैं। They depend upon each other for their functioning. वो एक दूसरे पे depend करते हैं उनकी functioning के लिए। The nervous system cannot function without the help of muscular system. नर्वस सिस्टम फंक्शन नहीं कर सकता किसकी हेल्प के बिना, मस्कुलर सिस्टम की हेल्प के बिना। द मस्कुलर सिस्टम डिपेंड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। वो किस पे डिपेंड करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है। इन द सेम मैनर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी वे में सर्कुलेटरी सिस्टम आपका किससे हेल्प, किसके साथ वर्क करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। बिफोर दैट, when you smile you use 17 small muscles, so keep smiling. जब आप स्माइल करते हो आप क्या यूज करते हो, अपनी 17 स्मॉल मसल्स को यूज करते हो, तो इसलिए आपको हर टाइम स्माइल करते रहना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैनी मसल्स। किससे बना हुआ था, बहुत सारी मसल से बना हुआ होता है। मसल्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस बॉडी मूवमेंट्स। रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट्स के लिए। दे आर अबाउट 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कितनी मसल्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, 650 मसल्स होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स। वो कहाँ से अटैच्ड होती है, हमारी बोन्स से अटैच्ड होती हैं। दे प्रोड्यूस मूवमेंट बाय पुलिंग द बोन इनटू अ न्यू पोजीशन। वो प्रोड्यूस करती है मूवमेंट पुल करके बोन को एक न्यू पोजीशन में। सो मोस्ट मसल्स वर्क टुगेदर इन पेयर्स। बहुत सारी मसल्स हमारी एक साथ वर्क करती है पेयर्स में। दैट इज फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। सो 2 मसल्स आर रिक्वायर्ड। कोई भी मूवमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, 2 मसल्स रिक्वायर्ड होती है।
दे परफॉर्म कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन, वो क्या परफॉर्म करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है और रिलैक्स भी हो जाती है। एंड वी फ्लैक्स अ मसल इट कॉन्ट्रैक्ट्स और गेट्स शॉर्टर, जब हम फ्लैक्स करते हैं मसल को क्या हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और शॉर्टर हो जाती है। ऑन रिलैक्सिंग, जब हम रिलैक्स कर देते हैं क्या हो जाता है, इट गेट्स बैक टू द ओरिजिनल शेप, वो एकदम अपनी ओरिजिनल शेप पे चली जाती है। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 35% to 40% वेट ऑफ आवर बॉडी, 35 से 40% क्या किसका वेट होता है हमारी बॉडी में, मसल्स होती है। मसल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स हैविंग टेंडॉन्स टू देयर एंड, मसल्स किससे बनी होती है, फाइबर्स से बनी होती है, जिनके एंड में क्या होते हैं, टेंडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टेंडॉन्स आर टफ टिश्यूज विच जॉइंट बोन्स एंड मसल्स, ये क्या होता है, आपके टफ टिश्यूज होते हैं, ज्वाइंट करते हैं आपके मसल्स को और बोन्स को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्ड एक्शन, 3 टाइप्स की मसल्स होती है हमारी बॉडी में, किसके बेसिस पे, उसके कंट्रोल एक्शंस के बेसिस पे। स्केलेटन और वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटन मसल्स आर वॉलेंट्री, क्या होती है आपकी, वॉलेंट्री होती है। इसका मतलब क्या होता है, दैट वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, हम इनके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। When we lift up weight or move our arms, we use voluntary muscles, जब हम लिफ्ट करते हैं वेट को और मूव करते हैं अपने आर्म्स को, हम वॉलेंट्री मसल्स को यूज करते हैं। और दीज मसल्स आर इन आवर कंट्रोल, ये सारी मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ आवर आर्म्स आर एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री मसल, जो बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं हमारे आर्म्स के, किसके लिए, किसके एग्जांपल्स है आपके, वॉलेंट्री मसल्स के। स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स आर यूजुअली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इट इज इन द ब्लड वेसल्स एंड अराउंड द आइज, कहाँ पे मिलती है, स्मॉल और स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर, आपके ब्लड वेसल्स में, अराउंड द आइज में मिलती है ये आपकी स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स। नाउ दीज मसल्स वर्क बाय देमसेल्फ, वो अपने आप वर्क करती हैं, इन्हें हमारी मूवमेंट की हमें कहने की जरूरत तो नहीं होती। दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सो दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, so they work automatically. These muscles help our lungs to expand and contract in the digestion of the food. So ये help करती है हमारे lungs को contract करने में, expand करने में, और हमारे stomach को भी help करती है digestion में। So now let's talk about cardiac muscles. Cardiac muscles found in the heart. It is an important involuntary muscles. Cardiac name से ही पता चल रहा है हमारे हार्ट में मिलती है ये। सो ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री मसल्स है। इट स्टार्ट्स वर्किंग 7th month बिफोर द बर्थ एंड स्टॉप वर्किंग आफ्टर डेथ। ये कब स्टार्ट करती है वर्किंग, हमारे बर्थ से 7 month पहले वर्क करना स्टार्ट कर देती है, और कब स्टॉप होती है, हमारी डेथ के बाद। इट मेक्स द हार्ट पंप ब्लड एंड कैरी इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली, हमारे हार्ट को हेल्प करती है ब्लड को पंप करने में और कैरी करने में हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। आई होप यू ऑल लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।